Hello students, welcome to my lecture. In today's lecture, I am going to discuss some important assertion and reason based question of the chapter Life Processes Class 10 Biology. So first, let me tell you some guidelines, some conditions, how to answer these assertion and reason based questions. So these are some conditions. You can choose option A, B, C, D, E as per the statement and assertion that you found. So let's start with the question number 1. So in this question, assertion is saying in the daytime, right? In the daytime, CO2 generated during respiration that is used up for the photosynthesis. Assertion is saying there is no CO2 released during the day. The answer of this question is option A, which means both assertion and reason are correct. And the reason is the correct explanation of the assertion. Now let me explain you how this A option is correct. In assertion, it is saying the CO2 generated during the respiration that is used up for photosynthesis. So respiration की reaction यहाँ पर बताती है कि respiration का मतलब है कि when the glucose that is C6H12O6 it break down into the CO2 plus H2O. Now this CO2 utilized by the reaction of photosynthesis, that is the CO2 plus H2O, then again it will form glucose plus O2. So let's balance this reaction. 6 CO2, 12 H2O, glucose, 6 O2 plus 6 H2O. So this assertion is true. Reason is saying that there is no CO2 released during the day. This reason is correct explanation because the CO2 that is produced, that is formed by the respiration in the daytime is utilized by the reaction of photosynthesis because the rate of photosynthesis is much higher than the rate of respiration. So there is no net release of CO2 during the daytime from the plant body. Option A is correct. Let's move to the next question. In this question, assertion is saying the raw material needed for photosynthesis are CO2, water and minerals, and reason is saying the nutrient provide energy to an organism. So the option for this question is option B, which means that both assertion and reason are correct, but reason is not a correct explanation of the assertion. So let me explain you how. In the previous question, I had already explained what is the rate of reaction of respiration and what is the reaction of photosynthesis. So in photosynthesis, CO2 plus water, it will form C6H12O6 plus O2. So hence proof CO2 and H2O are the raw material. Reason, in nutrient provide energy. Yes, absolutely right. This CO2, C6H12O6, this is the glucose and it provides energy during the oxidation. So both are correct, but explanation is not clear. So option B is the right option. Next question. Assertion is saying the lungs always contain residual volume, and reason is saying it provides sufficient time for oxygen to be absorbed and CO2 to be released. So the A option is correct. Means both are correct with the correct explanation because the lungs is always having some residual volume. Residual volume means that during breathing we inhale the air and also exhale the air. But some amount of air remain left inside the lung as a residue, due to which O2 and CO2 they get exchanged between the blood and the lungs. So option A is the correct option. Next question, the transpiration is necessary evil, means necessary भी है और evil भी है. चलिए रीजन देखते हैं इसका. रीजन कहता है कि it causes water loss but helps in absorption, upward movement of water and minerals. Now, again,
A option is correct. Means both are true with the correct explanation. Because transpiration का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर. तो वाटर का लॉस हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक इविल है. लेकिन इसी लॉस होने की वजह से वाटर रूट से मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और वो शूट एंड लीव्स तक पहुंचता है. तो अगर लीव्स में से ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर अकर थ्रू द phloem and reason is it is achieved by diffusion of sugar through the phloem. इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है सी. सी का मतलब क्या है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है. अब असर्शन कह रहा है कि शुगर के ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है. ये शुगर बनाया लीव्स में फोटोसिंथेसिस से. अब यही शुगर ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम लीव्स टू द प्लांट बॉडी पार्ट, और इसका जो ट्रांसलोकेशन करता है वो एक स्पेशल टिश्यू है फ्लोएम, वो करता है. तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई. अब यहां पर कह रहा है कि इट इज अचीव्ड बाय डिफ्यूजन. नो, ये डिफ्यूजन से नहीं होता, क्योंकि डिफ्यूजन में तो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, लेकिन शुगर के ट्रांसलोकेशन में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. इसलिए इसका जो रीजन है वो गलत है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम बताते हैं, डाइजेशन ब्रेक डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी इजिली एब्सॉर्ब. फाइन. रीजन, लेट्स चेक. A digestion is necessary for all the absorption of all molecules. अब देखते हैं, इसका आंसर आया सी. अब सी क्यों आया? ये अगेन इसका जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही. डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, वो आपके ब्रेक हो जाएंगे सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल. ये तो डाइजेशन हो गया. इट मीन्स कि जो आपका स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट हैं, ये इसकी अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड. असर्शन तो सही हो गया, लेकिन रीजन कह रहा है कि ये नेसेसरी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल. यहां गलती हो गई, ठीक है. ऑल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि जो विटामिन्स हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसका ऑप्शन है डी. डी ऑप्शन मतलब असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है. आप असर्शन क्यों गलत है? कि असर्शन कह रहा है कि एनर्जी यूज होती है रेस्पिरेशन में, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो ये तो गलत हो गया. रीजन कह रहा है कि रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यस, कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. तो रीजन इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ड्यूरिंग द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन डीएमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस इन लिवर. रीजन कहता है कि डीएमिनेशन इज अ प्रोसेस टू मेक यूज ऑफ एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म. देखिए, इसका ऑप्शन भी होगा डी. अब डी क्यों होगा? कि अगेन यहाँ जो असर्शन है वो गलत है. गलत इसलिए है कि यहाँ हम कह रहे हैं कि फिजियोलॉजी में का जो है एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी है, उसमें डीएमिनेशन नहीं होता है, जबकि लिवर में डीएमिनेशन होता है. डीएमिनेशन का मतलब क्या है? कि जो आपका अमाइनो एसिड अमोनिया है, ठीक है, वो अमोनिया ब्रेक हो जाता है यूरिया और यूरिक एसिड. तो ये कहां पर होता है? लिवर में, लिवर की हेल्प से होता है. ठीक है, तो असर्शन तो गलत हो गया. रीजन क्या कह रहा है? कि डीएमिनेशन इज अ प्रोसेस टू मेक यूज ऑफ एक्सेस अमाइनो एसिड. बिल्कुल सही बात है.
कि इसमें जो हमारा एक्सेस अमाइनो एसिड है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, तो वो आपका क्या कर देगा, यूरिया और यूरिक एसिड बना देगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड रीजन क्या है, एक्सक्रीशन इज द डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका ऑप्शन होगा ई। ई क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। असर्शन क्यों गलत है, असर्शन कह रहा है इजेशन, इजेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड, ठीक है, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो दोनों ही यहाँ अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, जिससे दोनों चीजें गलत हो गई। तो इजेशन आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट का डिस्चार्ज है और एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट का डिस्चार्ज है, जो यहाँ पर गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। इट मींस कि दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर देन ऑरिकल। रीजन देख लेते हैं इसका, कि दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत। असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मस्कुलर वॉल है वेंट्रिकल की वो ऑरिकल से ज्यादा थिक होती है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल ही क्या करती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, वो पुश कर रही है वहां से, इसलिए उसकी वॉल थोड़ी थिक होती है। लेकिन यहाँ पर रीजन कह रहा है कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ये गलत है, क्योंकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम वेंट्रिकल का नहीं है, वो किसका है, कौन उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट करने का काम होता है कि जो इसके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट हैं ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, वही बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। वेंट्रिकल का कोई रोल नहीं है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं कि इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीजन कह रहा है कि वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट व्हिच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका कह रहा है कि ये बी ऑप्शन सही है। बी क्यों है कि दोनों ही बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं भी इनका रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है। तो ह्यूमन हार्ट में क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो अलग अलग रहता है, वो मिक्स नहीं होता। लेकिन मिक्स क्यों नहीं होता, उसका रीजन वेल्व्स नहीं है, उसका रीजन है सेप्टम। क्योंकि एट्रियम, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में सेप्टम होती है, और उन्हीं सेप्टम की वजह से ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो वेल्व्स का काम सिर्फ बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ठीक है, और जिस वजह से कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो सर्जन को, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमको लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इन वुडी प्लांट गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू द लेंटिसल्स एंड रीजन कहता है कि लेंटिसल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड अलोंग विद स्टोमेटा ऑन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट। इसका आंसर है सी। सी का मतलब है असर्शन सही है कि वुडी प्लांट में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लेंटिसल्स के थ्रू होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेंटिसल्स क्या है, यहाँ पर रीजन कह रहा है कि वो स्टोमेटा के साथ वुडी प्लांट में मिलते हैं, नहीं, वो वुडी सरफेस पे नहीं मिलते। स्टोमेटा तो टेंडर पार्ट पर है, लीव्स पर है, ग्रीन पोर्शन पर होता है, वो वुडी पोर्शन पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, तो रीजन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन and it has no role in the secretion of urine। देखते हैं, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि assertion बिल्कुल सही होगी। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, तो ये assertion बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि इसका सीक्रेशन में कोई रोल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि नेफ्रॉन ही यूरिन को सीक्रेट करते हैं, क्योंकि इसके पास हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, पीसीटी है, हैनले लूप है और बीसीटी, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, विच मीन्स द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion is saying the muscle of stomach wall possesses thick layer of muscle, right? And reason is saying that these muscles help in the mixing of food with the enzyme present in the alimentary canal.
ये ऑप्शन आ रहा है इसका, तो इसका आंसर निकल के आ रहा है आंसर ए, विच मीन्स कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब क्यों करेक्ट है कि जो हमारे स्टमक की वॉल है ना, वो थिक मसल की लेयर होती है उसमें। वो थिक मसल्स की लेयर क्यों होती है? क्योंकि स्टमक के अंदर हमको पता है कि HCl प्रेजेंट है, और ये जो थिक वॉल है ये हमारे स्टमक को इस एसिड से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, रीजन इसमें बता रहा है कि हाँ कि these muscles help in the mixing of food with the enzyme present in the alimentary canal, and these muscles also help in the mixing of the food। जो फूड हमारा मिक्स हो रहा है उसको एसिडिक मीडियम मिल रहा है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Let's move to the next question. Artificial kidney is a device used to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. इसका रीजन कह रहा है कि reabsorption does not occur in artificial kidney. Yes. So option B कि assertion and reason दोनों ही सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल किडनी है उससे हम सिर्फ नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उसमें हम सिर्फ वेस्ट रिमूव होता है, उसमें और कोई फर्दर रीएब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी, तो ये रीजन अपनी जगह सही है और असर्शन अपनी जगह से, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किस तरीके से कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही रिमूव हो रहे हैं और कोई एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही है। तो दोनों चीजें सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन सच केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि CO2 प्लस H2O देन C6 H12 O6 प्लस O2, लेकिन रेस्पिरेशन में इसका उल्टा हो जाएगा, C6 H12 O6 प्लस O2 इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2। तो दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है, बिल्कुल सही है। और रीजन भी सही बोलेगा कि जो रेस्पिरेशन है ये हो रहा है रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये होता है एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज मच मोर देन इन द एनाएरोबिक प्रोसेस। रीजन यहां पर कहना चाह रहा है कि ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल produces 2 molecule of ATP and 38 molecule of ATP in aerobic and anaerobic respiration respectively। असर्शन बिल्कुल सही है लेकिन रीजन टोटली गलत है। असर्शन कह रहा है कि एनर्जी एरोबिक में ज्यादा रिलीज होती है, बिल्कुल सही बात है कि एरोबिक में एनर्जी का लेवल ज्यादा है और एनाएरोबिक में एनर्जी का लेवल कम होता है। रीजन कह रहा है कि एरोबिक में ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ATP दे रहा है और एनाएरोबिक में 38, ये गलत है, ये उल्टा है, क्योंकि एरोबिक में टोटल 38 ATP होते हैं और एनाएरोबिक में सिर्फ 2 ATP, क्योंकि 38 इसलिए है क्योंकि एरोबिक साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में होती है और एनाएरोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रीजन कह रहा है कि प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। यस, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि प्लांट के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में तो लंग्स हैं, ठीक है, गिल्स हैं फिशेस में, लेकिन प्लांट्स के पास कोई ऐसा स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट को, रीजन भी सही है कि प्लांट को कोई ज्यादा डिमांड नहीं है गैसेस एक्सचेंज का, स्टोमेटा है, सफिशिएंट है, स्टोमेटा से उसका काम चल जा रहा है, उसको और किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। रीजन, प्लांट्स बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल। यस, अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्लांट को एनर्जी कम चाहिए।
कम क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी बॉडी में डेड सेल भी प्रेजेंट है। अब डेड सेल किस फॉर्म में है? जाइलम, जाइलम में डेड सेल है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा, ये भी डेड सेल है, ठीक है। तो प्लांट के पास डेड सेल का कंपोजिशन है, जिस और डेड सेल को कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए प्लांट को लो एनर्जी नीड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, wall of intestine has numerous villi. These villi increases the surface area of digestion. इसका ऑप्शन होगा सी। सी क्यों है? कि इसमें असर्शन तो बिल्कुल सही है कि इंटेस्टाइन में विलाई है, तो विलाई करके रहा है, विलाई सरफेस एरिया तो बढ़ा रहा है, लेकिन किसके लिए? एब्जॉर्प्शन। तो विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है जिससे कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, assertion is true but the reason is false. Next question, lipase help in the emulsification of fat. Lipase hydrolyzes fat and oil. D option. D क्यों है? क्योंकि emulsification lipase नहीं बाइल करता है, ठीक है। तो emulsification किसकी हेल्प से होता है? बाइल की हेल्प से, लाइपेज की हेल्प से नहीं होता है। लेकिन रीजन सही है क्योंकि लाइपेज क्या करता है? वो फैट और ऑयल को हाइड्रोलाइज करता है, उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो रीजन बिल्कुल सही है लेकिन असर्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इट इज मेजर्ड बाय स्फेगमेनोमीटर। इसका है बी ऑप्शन। बी क्यों है? असर्शन भी सही है कि जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं वो आर्टरी का ही ब्लड प्रेशर, कि किस प्रेशर से आर्टरी ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है, वही प्रेशर हम लोग लेते हैं 80-120, ठीक है। और रीजन क्या है? कि इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस। ये तो अलग बात हो गई, ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर क्यों कहा जाता है। ये तो डिवाइस का नाम बता रहा है कि किससे हम मेजर कर रहे हैं। तो चीजें दोनों से, लेकिन वो कहीं भी एक्सप्लेनेशन वाला रोल नहीं है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, lymph, also known as tissue fluid, that is colorless. It lacks erythrocyte. Yes, absolutely right. Both are correct with the correct explanation, क्योंकि lymph colorless है। और colorless क्यों? क्योंकि इसके पास erythrocyte means RBC नहीं है, तो RBC की वजह से ही रेड कलर होता है। अगर RBC जिसमें नहीं होगा उसमें कोई कलर डेवलप नहीं होगा। और कलर क्यों डेवलप होगा? क्योंकि RBC मीन्स उसके पास हीम ग्रुप प्रेजेंट है और यही हीम ग्रुप कलर डेवलप करता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी. Kidney perform the function of removing excess water and nitrogenous waste from the body. A is the right option because both are correct with correct explanation. क्योंकि हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में किडनी ही एक सबसे मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वही काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का. इसमें फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सिक्रेशन भी हो रहा है. और ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किडनी परफॉर्म करता है removing of the excess water and the nitrogenous waste present in the body. Option is the correct option. Assertion: humans are not truly aerobic. They produce lactic acid anaerobic. ठीक है, बिल्कुल सही बात. यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमंस क्या है, ट्रूली एरोबिक नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है तो मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं, ये होगा एन एरोबिकल. थोड़ा टाइपिंग एरर है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, एन एरोबिकल. तो ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन: HCl convert pepsinogen into active enzyme pepsin. Reason: Pepsin convert protein into proteases and peptide. Yes. दोनों सही है, लेकिन जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं है कि HCl कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में. तो कैसे कर रहा है, ये तो उसने बताया नहीं. ये क्या बता रहा है कि यहाँ पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट तो कर दे, लेकिन वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है.
और वही एसिडिक मीडियम इसको कन्वर्ट करता है। तो ये कहीं भी इस रीजन में मेंशन नहीं किया गया है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अकर इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सेल्फ मैन्युफैक्चर देयर फूड। बिल्कुल सही बात है कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स कि वो न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट ही ऑटोट्रॉफिक हैं, सिर्फ वही अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है, एनिमल अपना फूड नहीं बनाता है। तो रीजन भी सही है कि ग्रीन प्लांट्स सेल्फ मैन्युफैक्चर देयर फूड, सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। रीजन कह रहा है कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। यस, बोथ आर करेक्ट एंड देयर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन प्लस O2 ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरऑरिकुलर सेप्टम सेपरेट लेफ्ट एंड राइट एट्रियम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट लेफ्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। तो दोनों ही चीजें सही हैं, लेकिन कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है ना, जस्टिफिकेशन नहीं है। दोनों अपनी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरऑरिकुलर सेप्टम सेपरेट कर रहा है लेफ्ट और राइट एट्रियम को, सही बात है। इंटरवेंट्रिकुलर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है ये नहीं बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन अगर होता जिससे कि मिक्सिंग ना हो तब हम ए ऑप्शन डाल देते इसमें, लेकिन वो यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। इसमें दोनों ही गलत है। ये कह रहा है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड, नो, सारी आर्टरी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड रखती है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारा असर्शन गलत हो गया। रीजन कह रहा है कि पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, नहीं, पल्मोनरी वेन के पास क्या है? पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड। तो दोनों ही चीजें गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर इज नोन एज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट सीक्रेट्स सलाइवरी अमाइलेज। दोनों ही गलत, क्योंकि लिवर हमारा स्मॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये सलाइवरी अमाइलेज नहीं, बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, valves are present in the arteries and arteries carry oxygenated blood from heart to different body part except pulmonary artery. Yes, D. इसमें assertion गलत है, रीजन सही है, क्योंकि valves आर्टरी में नहीं वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और रीजन सही है कि आर्टरी क्या करता है? वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से? हार्ट से बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। तो बिल्कुल सही है रीजन। So option D is the correct option. So friends, hope you understand the concept of how to give answer these assertion and reason based question to score maximum mark in the coming CBSE board.